Hello everyone, welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. I hope you all are doing very well and are in extremely great health. So today we are once again back with a session that is geometric progression. I hope you have attended the arithmetic progression session also. थोड़ा पहले हमने किया था arithmetic progression session if you remember, right? So I hope सभी लोगों ने attend करी है. We have done 2 classes on AP, that is arithmetic progression, and today we are back with geometric progression. So there is a slight difference between arithmetic progression and geometric progression that we will see today कि क्या difference है दोनों series के अंदर में. Basically these are the series जहां पे we talk about their pattern or something like that, right? So hi everyone, hello Manas, how are you doing beta? Very good afternoon to you. कैसे हैं आप? क्या चल रहा है, कैसे चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास. Hi, hello, how are you sir? I'm doing very well and I'm fine. How are you doing? I hope you have attended yesterday's class also जहाँ पे हमने clocks discuss किया था और आप सभी लोगों ने arithmetic progression because these two are very important series. ये दोनों आपको आनी चाहिए अच्छे से when we talk about arithmetic progression और we talk about geometric progression. तो sequence and series के अंदर में ये दोनों ही बहुत important series है. Right, so before starting the session please do like the session, please do share it with everyone. फटाफट से शुरू करते हैं with some information. ठीक है, और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या क्या करेंगे. सबसे पहले we will talk about the basics of geometric progression, जहां पे we will discuss what is geometric progression, what are the formulas to calculate any term of the GP, or you can say for if you want to calculate what is 10th term, 15th term or any term, how we can do it, and how can we calculate the sum to n terms of the GP, how can we calculate the sum to infinite terms of the GP, and कब हम calculate कर सकते हैं infinite terms का sum और कब हम calculate नहीं कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करेंगे. We'll practice certain questions also. तो फटाफट से शुरू कर देते हैं सेशन and with an announcement as usual. So what is the announcement? Prepare with India's best faculty. Join CLAT 2023, a comprehensive course batch 6 we have launched. That means batch 1, 2, 3, 4, 5 already running. Now we are at batch number 6, right? So what are the highlights of the course? Why to take this course? If you want to build CLAT 2023 concepts from the scratch for the beginners, day-wise study plan would be there covering the entire syllabus. Expert guidance by NLU alumni, 200 plus live classes for the new CLAT pattern with interactive quizzes. So these are all the highlights of the course. That is the announcement. Now let's start the session. सबसे पहले तो बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सर ये जीपी होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज जीपी? जीपी इज बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब किसी भी सीरीज को या गिवन टर्म्स हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो गिवन टर्म्स आर सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो बिटवीन एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द कॉमन रेशियो. मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो, दैट मींस आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म. ठीक है, उन दोनों का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए. देन द सीरीज इज सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, दो सर क्या कैसे पता चलेगा? जैसे ये वाली एक सीरीज है 3, 6, 12, 24, 48, 96. यहां पे हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो इज सेम. एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म रेशियो मींस 6 डिवाइडेड बाय 3. व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 3? 2. Similarly, what is 12 divided by 6? Once again 2. What is 24 divided by 12? Once again 2. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो देखना है. 48 डिवाइड बाय 24 is 2, 96 डिवाइड बाय 48 is 2. So basically a series or the given terms are said to be in geometric progression कब? जब हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होगा. जैसे यहां पर वो कॉमन रेशियो कितना है? 2. और जो भी वो सेम रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन रेशियो which is denoted by small r. Is it clear? ठीक है. अच्छा, दो तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो सकती है, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग जीपी. व्हाई इंक्रीजिंग जीपी? बिकॉज कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग जीपी. व्हाई इट इज डिक्रीजिंग जीपी? बिकॉज कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. हाउ इट इज लेस देन 1? बेसिकली कॉमन रेशियो हियर इज 48/96 which is half. उल्टा नहीं करना है, ये नहीं कि डिवाइड करना है 90 बड़े को छोटे से, नहीं ऐसा नहीं करना. आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म ऑलवेज. तो 48 डिवाइड बाय 96 हाफ इज द कॉमन रेशियो. सिमिलरली 24 डिवाइडेड बाय 48 हाफ. वंस अगेन यहां पर भी 12 डिवाइडेड बाय 24, सो इट इज टर्निंग आउट टू बी हाफ.
सो बेसिकली कभी भी कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई भी गिवन टर्म्स हमारी जीपी में होंगी जब कॉमन रेशियो होगा, एवरी टू टर्म्स का रेशियो सेम होगा। अब वो रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, if that ratio is greater than 1, that is increasing GP, that will keep on increasing, and if that ratio is less than 1 like this, then it is called as decreasing GP। ठीक है, यहां पर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/2। हमेशा आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म करेंगे, ये याद रखना है, ऐसा नहीं करना बड़े को छोटे से डिवाइड करना है। ठीक है, वेरी गुड मनस, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। अब पहली चीज पे चलते हैं, इसके फर्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी। मान लो कोई भी जीपी गिवन है, जैसे हमारे को यही वाली जीपी गिवन थी, और कोई हमसे बोले बताओ इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, इसी जीपी की 10th टर्म क्या होगी, तो हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। सो हाउ टू फाइंड nth टर्म, लेट्स डू इट। tn का जो फॉर्मूला होता है, tn इज बेसिकली nth टर्म। सो हाउ टू फाइंड nth टर्म, a into r की पावर n-1, where a is the first term, जो भी हमारे को गिवन जीपी है उसका फर्स्ट टर्म इज a, r is the common ratio, ठीक है, आगे वाली टर्म डिवाइड बाय पीछे वाली टर्म, n is the number of terms, जो सी भी टर्म आप निकालने जा रहे हो that is, and nth is the nth term। So for example if you want to find out 10th term of the given term GP, तो n की जगह पर 10 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो भी होगी इनटू कॉमन रेशियो जो भी कैलकुलेट करके आएगा, और n-1 कर देंगे, तो n कितना है 10, तो t10 वुड बी a into r की पावर 10-1 is 9। तो ये आपकी वैल्यूज पुट करोगे, you'll get the answer। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड कि कैसे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सीरीज गिवन है, नाउ दिस इज अ सीरीज विच इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाई? बिकॉज 6 divided by 3 is 2, 12 divided by 6 is also 2, this is also 2, that means this series is in geometric progression where common ratio is 2, and what is the first term here? First term is going to be 3, and we want to calculate the 10th term, so n will become 10 now. You just need to plug in the values and you will get the answer. So what is going to be the nth term का formula? A into r to the power n-1. Now if you want to calculate the 10th term, so instead of n, what we will be putting? 10. And what is the first term here? 3 into common ratio is 2 whole to the power 10-1. So this is 3 into 2 की power 9. So basically 3 into 512 is going to be the 10th term. Is it clear? Yes, Manas and all. समझ में आ रहा है? क्या करना है, कोई भी अगर हमें nth टर्म निकालना है, we can directly use the formula first term into common ratio की power n-1, n is the number of terms, तो first term here is 3, common ratio here is 2, and अगर 10th टर्म निकालनी है तो t10 is equal to 3 into 2 की power 10-1, तो 3 into 2 की power 9। क्लियर? अगर यहां पर ही मैं आपसे बोलता बताओ भाई, हाँ वेरी गुड, बताओ भाई यहाँ पे अगर आपको, वेरी गुड ईशान, 20th टर्म निकालनी है तो n की जगह पर आप क्या करते, n की जगह पे यू वुड हैव पुट 20, सेम लॉजिक, फर्स्ट टर्म 3 रहती, कॉमन रेशियो 2 रहता, तो 20-1 हो जाता, तो 3 into 2 की पावर 19। अच्छा आप बोलोगे सर 2 की पावर 19 सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, तो कई बार ऑप्शन में ऐसे ही पावर्स गिवन होती हैं, बड़ी बड़ी पावर, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको उसकी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ एनी जीपी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, अगर मान लो ऐसे कोई जीपी गिवन है, उसकी 10 टर्म्स का सम पूछ ले, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछ लिया जाए हमसे, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी तरफ मूव करते हैं। बट उससे पहले देयर इज एन अनाउंसमेंट, एन एक्सप्रेस कोर्स फॉर Maharashtra CET, CLAT, BLAT, Jamia, LLB 2022 we have launched. This is for all those who want to prepare for these particular exams, who should take this course if you want to reach your dream law college, ठीक है, with the best study plan, monthly e-magazine on legal reasoning and current affairs जिसकी बहुत जरूरत होती है, all topics covered through live classes and quizzes, one-to-one mentorship guidance, daily quizzes to boost your speed and accuracy. So these are the highlights of the course. Now let's move on to once again अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब मान लो अगर हमें सम टू फर्स्ट n टर्म्स, अच्छा ये n टर्म्स नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम टू फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, सो दिस इज नॉट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट n टर्म्स, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, मान लो कोई भी आपको सीरीज दी हुई है, गिवन टर्म्स है जो कि आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और आपसे पूछा जाए इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो, इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट SN। SN क्या है? सम टू फर्स्ट n टर्म्स, सम टू फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करते हैं SN से, राइट। A इज वंस अगेन द फर्स्ट टर्म जो अभी हमने देखा था, R इज द कॉमन रेशियो, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमें कभी भी सम कैलकुलेट करना है, एंड इफ R इज ग्रेटर देन 1, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला?
a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, लेकिन r हमेशा 1 से बड़ा नहीं होता। अभी हमने एग्जांपल भी देखा था डिक्रीजिंग जीपी का। तो इफ r इज लेस देन 1 देन द फॉर्मूला विल बी चेंज्ड। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इज इट क्लियर? क्या करना है? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला विल डिपेंड अपॉन r। तो कंडीशन है यहां पर, तो अगर आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, इट विल डिपेंड ऑन r। इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन दिस इज द फॉर्मूला a into r की power n minus 1 upon r minus 1, and if r is less than 1 then this is the formula. What is the formula? a into 1 minus r की power n upon 1 minus r. Right? Let's do an example based on the same logic. Suppose we want to calculate the sum to first 10 terms of the GP. Now this is the GP which is given to us. सबसे पहले you need to calculate what is common ratio. ठीक है, common ratio here is 6 upon 3 2. 12 upon 6 is also 2, 24 upon 12 is also 2, this is also 2. So basically 2 आ रहा है common ratio, and if common ratio is greater than 1, so what is the formula? a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. यही फॉर्मूला होगा, राइट? अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। सो अगर कॉमन रेशियो हमारा 1 से बड़ा है तो दिस इज द फॉर्मूला, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। एंड फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है तो n की जगह पर 10 रख देंगे। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 3, तो फर्स्ट टर्म की जगह पर 3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 2, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर 10 इज 1024, 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1, तो दिस इज 3 इंटू 1023। यस, व्हाट इज द आंसर? 3069 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Very good. Hi Belinda, how are you? Is it clear? So if you want to calculate the sum to first n terms, how we can do it? This is the formula if r is greater than 1, and this is going to be the formula if r is less than 1. For example, if I ask you, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, suppose now the question is 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 3s are 108. Suppose this is the question and you want to calculate what is the sum of first 10 terms या sum of first 8 terms, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज r इज स्टिल ग्रेटर देन 1। तो सम टू फर्स्ट 8 टर्म्स कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज 4। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेलिंदा बेटा। r कितना है? कॉमन रेशियो हियर इज 3। आप देखो कोई भी टर्म डिवाइड करो, कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, सो 3 टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। कैलकुलेट करोगे यू गेट द आंसर, ठीक है। बट ये फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब, क्या तब कब यूज होगा? व्हेन r is greater than 1, and if r is less than 1, for example let's take a series where r is less than 1. Suppose I am taking a series 48 24 12 6 3 and so on. r कितना आएगा यहाँ पे? 24 upon 48 is half, 12 upon 48 24, 12 24 is half, this is also half. तो basically r here is half, और अगर r आपका 1 से छोटा है तो how to calculate sum to first n terms? Suppose you want to calculate the sum to first 10 terms, so we will use the formula a into 1 minus r की power n upon 1 minus r. तो first term here is 48, 1 minus what is the common ratio? Half whole to the power 10 upon 1 minus 1 by 2. So this is going to be the formula. Is it clear to all? I hope this is clear to everyone now. अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि मान लो आपकी कोई सीरीज चल रही है और वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ रहा है आपसे। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फाइनाइट, क्या आप सम निकाल सकते हो? जल्दी बताओ, इज इट पॉसिबल? यस, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर मान लो कोई सीरीज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीरीज 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सीरीज जा रही है, दिस इज इन जीपी। तो क्या आप इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हो? मनस इज सेइंग यस सर, अदर्स आल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड। कैन वी फाइंड द फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स का सम इसकी? यस, बेलिंदा इज आल्सो सेइंग यस। बिल्कुल गलत जवाब है भाई आप लोगों का, आप लोगों को जान के बहुत दुख होगा। आंसर इज नो, वी कैन नॉट फाइंड आउट। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है बचपन में कि निकाल सकते हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। नहीं निकाल सकते बेटा। क्यों नहीं निकाल सकते यहाँ पे? बिकॉज हेयर कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 8 डिवाइड बाई 4 इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। कॉमन रेशियो हेयर इज 2, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द इनफाइनाइट टर्म का सम
वाई? बिकॉज सीरीज बढ़ती चली जाएगी, सीरीज की टर्म्स और बड़ी 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 होती चली जाएंगी एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो फिर तो इनफाइनाइट टर्म का सम तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा ना। अगर हमारी टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं तो इनफाइनाइट ही आ जाएगा। तो अब इनफाइनाइट टर्म का जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, ये वाला फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, यही फॉर्मूला पढ़ा था। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज a अपॉन 1 माइनस r, राइट। लेकिन कंडीशन क्या होती है? r शुड लाई बिटवीन -1 टू +1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। आप तभी निकाल सकते हो इनफाइनाइट टर्म का सम व्हेन r lies between -1 to +1. If r is greater than 1 or if r is less than -1, then you cannot find the infinite term का sum. नहीं होगा बेटा, तभी होगा जब r आपका -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब डिक्रीजिंग जीपी जब होगी, डिक्रीजिंग जीपी मतलब टर्म्स कम होती चली जा रही है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज दिस इज द एग्जांपल 48 24। अब यहां पर देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है। यस, व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर? 24 अपॉन 48 इज हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ एंड सो ऑन। ये सबके सब हाफ होते चले जा रहे हैं। सर दिस इज द फॉर्मूला a अपॉन 1 प्लस r, नॉट 1 माइनस r इज implicable or not? ये बेलिंदा, दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन r lies between -1 to +1. Sorry, if r is greater than 1 or if r is less than -1, then the answer is infinite. In this case r turns out to be half. Now you can use this formula. Why? Because this half is lying between -1 and +1. Now you can use the formula. Sum to infinite terms is first term, which is 48, divided by 1 minus common ratio, which is half. Now it will become 48 upon half, 2 will go upwards, so 48 into 2, answer will become 96. अब आप निकाल सकते हो। अब आप लॉजिकली भी अगर सोचो तो ये सीरीज कम होती जा रही है, 48 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 0.75 एंड सो ऑन। नाउ दिस सीरीज इज डिक्रीजिंग। तो अब ये डिक्रीज होते होते इतनी छोटी हो जाएगी कि आप आगे जाके यू कैन फाइंड आउट द सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स। बट इफ द सीरीज इज इंक्रीजिंग, इफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 or common ratio is less than -1, then answer will become infinite, na, because series will keep on increasing. Very good. Yes, Manas, Ishan, is it clear? Belinda को clear हो चुका है, very good. ठीक है, so we can find out the sum to infinite term, but what is the condition? Condition here is common ratio should lie between -1 to +1. That means series has to be decreasing. Then only we can find out the sum to infinite terms. Otherwise, we cannot find out the sum to first infinite terms. I am hoping it is clear to all. If it is clear, please find out the answer to this. Jaldi se, I am waiting for your answers. Take 20-30 seconds and try to answer this question. I am hoping you will be able to answer the question in 30 seconds. Very, very easy question. Direct formula driven question. No need to do anything in this. Yes, sir. Okay, ji. जल्दी से बताओ, what is the answer to this one? Find the sum to infinite terms to a series. And what is the series? 40, 20, 10, 5, 2.5 and so on. Here common ratio is less than 1 or you can say common ratio is lying between -1 to +1. So you can use the formula, no issues. Answer can be determined. ठीक है, so what is the formula? Sum to infinite terms का a upon 1 minus r if common ratio is lying between -1 to +1. This is the formula you have to use. Okay, Ishan have given the answer. Very good. Yes, others also. Only Ishan have given the answer till now. Okay जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में we'll do an application based question based on the same logic. इसके अंदर सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, sum to infinite terms and finding sum to n terms. That is the only 3 concepts in this. इसके बाद we'll do a application based question. Okay, great. क्या करना है? सिंपल है, कॉमन रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। 20 upon 40 is half, 10 upon 20 is also half, 5 upon 10 is also half. So the common ratio here is half and first term is 40. Just put the values. So 40 upon 1 minus 1 by 2. So this is 40 upon 1 by 2. 2 will go in the numerator. So it will become 42 is 80. Very good. Okay, great. Muji have also got the answer. Now let's do a question which is, you can say, application based question. Just read the question once. Take 20 seconds. Very good. Belinda has got the answer now. Muji got it. Jaldi se, just read the question and trust me, it is very, very good question.
ओके, Manas have also got the answer. जल्दी से बताओ, रीड कर लो क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. It is a little bit bigger question, but if you understand it, it is a crazy ball का क्वेश्चन. आप लोगों ने सबने बचपन में क्रेजी बॉल देखी होगी, उसको एक बार ऐसे उछालो और वो धीरे धीरे, ठीक है, तो वो नीचे फाइनली जाके रेस्ट पे चली जाती है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू द रेस्ट, है ना. सो दैट इज द क्वेश्चन हियर. तो समझ लेते हैं एक बार, व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू फर्स्ट. क्वेश्चन इज सेइंग अ रबर बॉल इज थ्रोन 200 मीटर अप इन द एयर. So there is a rubber ball, उसको आपने 200 मीटर ऊपर फेंका, ठीक है, in the air. Then it comes down, वो नीचे आएगी, obviously rebound करेगी and rebounds to 4/5 of the original height. ठीक है, original height was 200 मीटर. पहली बार आपने उसे 200 मीटर तक भेजा था, तो next time 4/5 of original, 4/5 of 200, that means 80 मीटर तक जाएगी. Yes, sorry, 160 मीटर, not 80 मीटर. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, देन वंस अगेन इट रिबाउंड्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द बॉल कम्स टू द रेस्ट. वापस से बॉल 4/5 हाइट जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर 4/5, फिर नीचे. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, राइट, सपोजिंगली दिस इज द ग्राउंड लेवल. यहां पे आप खड़े हो, आपने एक बॉल को फेंका 200 मीटर अपवर्ड, ठीक है. हाँ, अभी देखते हैं. सो ये जो लेंथ है दैट इज 200 मीटर्स. तो बॉल 200 मीटर तक ऊपर गई, इसके बाद में बॉल केम डाउन 200 मीटर नीचे आएगी. देन वंस अगेन अब जो ये रिबाउंड करेगी 4/5 ऑफ द हाइट, तो 4/5 ऑफ 200 मीटर दैट इज गोइंग टू बी 160 मीटर तक रिबाउंड करेगी. यस और नो. अगली बार जो उसने ट्रैवल करा दैट इज 160 मीटर, और अगर 160 मीटर ऊपर गई है तो 160 मीटर नीचे भी आएगी बॉल, तो अब आ जाएगी 160 मीटर डाउन. ठीक है, वंस अगेन 4/5 ऑफ 160 एंड व्हाट इज 4/5 ऑफ 160, 5 3 15, 5 2, सो 32 into 4 दैट इज 128 मीटर्स तक ऊपर जाएगी. यस और नो. तो इस बार फिर से ऊपर जाएगी एंड इस बार जाएगी 128 मीटर. तो ये करते करते डिस्टेंस कम होता जाएगा. 128 मीटर अगर ऊपर गई है बॉल तो 128 मीटर डाउन भी आएगी, सो फिर डाउन आ जाएगी 128 मीटर. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, फिर से 4/5, फिर से 4/5 जाना आना, और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी कभी ना कभी जाकर के जीवन में. तो आपको ये बताना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, राइट. समझ गए आप लोग. तो अब आप ये देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. अगर आप देखो तो यहां पर जीपी बन रही है. कैसे जीपी बन रही है, फर्स्ट यू हैव ट्रेवल्ड 200 डिस्टेंस, बॉल ने 200 ट्रेवल करा और 200 डाउन आई, फिर से 200 ट्रेवल करा, राइट, फिर 160 ट्रेवल करा, उसके बाद में 160 डाउन आई, फिर से नेक्स्ट 128 ट्रैवल करा, 128 डाउन आई. तो अब आप किसी भी एक को पकड़ लो, सपोज हमने इस वाली सीरीज को ले लिया, सो 200, 160, 128 एंड सो ऑन, अप टिल इनफाइनाइट जा रहे हैं हम, और इसी का डबल हो रहा है. क्या करना है, इसी का डबल करना है. तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जीपी बन जाएगा विद द कॉमन रेशियो 4/5, 160 अपॉन 200 इज 4/5, 128 अपॉन दिस इज ऑल्सो 4/5. तो ये हमारी जीपी बन गई इनफाइनाइट जीपी वेयर कॉमन रेशियो इज 4/5 एंड फर्स्ट टर्म इज 200. तो आप इसका सम निकाल सकते हो, राइट. कॉमन रेशियो इज लाइंग बिटवीन -1 to +1, तो यू कैन फाइंड आउट द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स. व्हाट इज गोइंग टू बी द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स हियर, फर्स्ट टर्म इज 200 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो which is 1 minus 4/5. तो आंसर will become 200 upon 1/5, 1/5 will go upward, that is 1000. yes or no. अब 1000 मीटर है जो वो ऊपर गई है, और 1000 ही नीचे भी आई होगी, सेम डिस्टेंस ये भी है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 1000 into 2, that is 2000 मीटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डबल इट अप, क्योंकि अगर आप 200 मीटर अप गई है बॉल तो 200 मीटर डाउन भी आई है, फिर 160 मीटर अप गई है, 160 मीटर डाउन आई है, फिर 128 मीटर, 128 मीटर डाउन. So this is the application based question of what, of your infinite GP. Is it clear to everyone, or should I explain this once again? 200 मीटर बॉल को ऊपर फेंका, 4/5 नाइट नीचे आई, फिर 200 मीटर ऊपर, वो सॉरी 160 मीटर ऊपर, फिर 160 मीटर से नीचे आ जाएगी, फिर 128 मीटर. अच्छा ये सब मैं कैसे निकाल रहा हूं, 4/5 होना है.
1000, yes, very good. 1000 is ऊपर ऊपर जाने वाला डिस्टेंस, upward distance, and same 1000 would be the downward distance also, because the same distance you have traveled upward, the same you have traveled downward, right? चलिए, very good. I hope it is clear to all. Great. Now I am giving you a homework question, जिसका answer you will tell me in the comment section. What is the homework question? Once again, an application driven question. Suppose there is a square. I am explaining the question to you. Suppose there is a square and the length of the square is, let's say, 10 meter. Side of the square is 10 meter. This is given to us. ठीक है. Now you have joined all the midpoints of the square. तो midpoint कहां पे होंगे? यहां पे सब जगह. So you have joined all the midpoints of a square. तो आप जब भी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, सो ऑब्वियसली आपको जो फिगर मिलेगी दैट विल आल्सो बी अ स्क्वायर. कभी भी अगर हम स्क्वायर के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो वी विल ऑलवेज गेट अ स्क्वायर, राइट? तो फिर से एक स्क्वायर मिल जाएगा. तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 5, तो दिस लेंथ विल बिकम 5√2 पाइथागोरस थ्योरम से. तो ये 5√2 आ जाएगा सारा का सारा. ठीक है. वंस अगेन यू हैव जॉइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर. जो ये स्क्वायर बना है इसके भी मिड पॉइंट्स आपने फिर से ज्वाइन कर दिए. नाउ वंस अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ स्क्वायर. फिर से आपने स्क्वायर के मिड पॉइंट ज्वाइन करे तो स्क्वायर मिलेगा, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. तो यू फिर से आपने इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए, एंड यू कीप ऑन डूइंग इट अप टिल इनफाइनाइट. इनफाइनाइट तक आप ये करते रहे. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स. फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स. जो भी स्क्वायर्स बने हैं उन सारे स्क्वायर्स के एरियाज का सम बताना है. ठीक है. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो भी नई फिगर बनी वो स्क्वायर ही बनेगा. उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया फिर से स्क्वायर बनेगा. ऐसे करते करते हम इनफाइनाइट स्क्वायर बनाते गए, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर. तो आपको उन सारे स्क्वायर्स के एरियाज का सम बताना है. ठीक है. कॉमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा. दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. Very good. Once again, there's an announcement. Prepare with India's best faculty. Join CLAT 2022 Comprehensive Preparation Course Batch 4. We have launched. That means Batch 1, 2, 3 are already running. Now we are on Batch number 4. So who should take this course? Who want to build CLAT 2022 concepts from the scratch for beginners? Expert guidance by NLU alumni until the day of your exam. Progress assessment test to gauge performance at regular intervals and highly interactive doubt clearing sessions. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. एक और होमवर्क दे देता हूं मैं, सिमिलर सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना. सपोज देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. सेम लॉजिक चलेगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल. लेट्स से द साइड्स आर 20 मीटर, 20 मीटर एंड 20 मीटर. ठीक है. वंस अगेन यू हैव जॉइंड व्हाट? यू हैव जॉइंड ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर मिड पॉइंट ज्वाइन किया है तो वो तीसरी साइड के हाफ होगा, तो ये 10 का हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना. तो ऐसे ये भी 10 की लेंथ हो जाएगी. मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी 10 हो जाएगी. तो कभी भी अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो तो आपको फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलता है. तो आप ऐसा करते चले गए फिर से इनफाइनाइट टाइम तक. तो आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्राइंगल. फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्राइंगल. इज इट क्लियर? जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सारे ट्राइंगल्स के एरियाज का सम निकालना है. सेम लॉजिक, जो स्क्वायर वाला लॉजिक है वही लॉजिक यहां पे चलेगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर. और प्लीज इस दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में बताना. 200, हाँ फिरदौस, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताना, वहां पे बताऊंगा मैं सही है गलत है. ठीक है. दोनों क्वेश्चन के, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी और स्क्वायर भी. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.